Hello, student. Good morning, all of you. I am Madhuras. I am going to teach the first chapter in main English course book. Your first chapter is Healing Hands. Now you can see the title Healing Hands. Here are some symbol and related to title, which match the following symbols with their respective titles. And in first page, front page, here are some hard word which you can see. Firstly, here are symbols. First symbol is ISO, first add symbol. Second symbol is related to St. Andrews first and base. And third symbol is Amalfi cross. Fourth symbol is related Red Cross. And fifth symbol is a star of life. Now here some hard word which word meaning you note down. Firstly, here title is Healing Hands. Healing hands make or become healthy again. Or put right, that's meaning, that's हिंदी, उपचारात्मक या आरोग्यात्मक. First word is casualty. Here meaning is a person or thing badly affected by an event or situation. That's meaning is दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति. Second word is encountered. अकस्मात देखना, अचानक किसी को देखना. Here unexpectedly and meet or be faced with, यानी कि सामना करना, अचानक उसे देखना, अकस्मात देख लेना. थर्ड वर्ड इज ashamed, वेरी पेल फ्रॉम शॉक, रक्तहीन या पीला, पीला पड़ा हुआ चेहरा. ऑफ ए पर्सन्स फेस हैविंग लाइट, यानी डर के कारण भयभीत हो जाने के बाद जैसा हम लोग का चेहरा दिखता है, बिल्कुल पीला, ऐसा लगता है जैसे ब्लड है ही नहीं, वो रक्तहीन या पीला चेहरा, उसे हम बोलते हैं ऐसे. फोर्थ वर्ड इज टेरिफाइड, दैट्स मीनिंग इज भयभीत. मेक समवन फील टेरर. फिफ्थ awkward, hard to be or deal with, not graceful, यानी कष्टदायक या खराब सिचुएशन. सिक्स वर्ड इज अडैम, अटल, अडिग, हठी. refusing to change your mind about something.
सेवेंथ वर्ड इज अनस्कैच्ड, सही सलामत या सकुशल, विदाउट सफरिंग एनी इंजरी, डैमेज और हार्म। विक्टिम, दैट्स मीनिंग इज पीड़ित, शिकार व्यक्ति जिसके साथ एक्सीडेंट या इवेंट या कोई घटना घटा है। ए पर्सन हार्म्ड और किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए क्राइम और एक्सीडेंट। नाइन्थ, एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा, व्यापक, दैट्स मीनिंग इज covering a large area, large in amount of or a scale, hue, very large, etc. Now you will read the story part first. After a long day at the office, Jane Hodgson was on her way home and looking forward to relaxing with a nice cup of tea. Unfortunately, it took some time that evening before she got her cuppa. While driving, she noticed that there was a car pulled over at the side of the road and a crowd had started to gather around someone who was lying on the floor. इस स्टोरी में बताया गया है कि जैन अपने ऑफिस से जब वापस घर आ रहे थे अपनी गाड़ी चलाते हुए, तो अचानक उन्होंने रोड के किनारे नोटिस किया कि कोई पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ भीड़ एकत्रित है। Jane, who had completed a first aid at work post with the British Red Cross, pulled over to see if she could offer any help, and it turned out to be lucky for the young casualty that she died. उन्होंने देखा कि कोई एक यंग है जो यहाँ पे लेटी हुई है, अब वो हेल्प चाहती है। जेन अपना फर्स्ट एड का कोर्स कंप्लीट कर चुके थे। Describing the scene they encountered, Jane says the onlooker were just that, a couple of young lads was shamefaced and looking lost. They were completely terrified. When I walked the first aid kit in hand, they said, "You are first aider? Oh, thank God." जब उन लोगों ने देखा कि इसके हाथ में फर्स्ट एड का किट है, तो उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा किया और अब उन्हें लगा कि ये हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं। The poor lads were so shocked they had not even thought to call for an ambulance yet. After speaking to the emergency service, the good Martin got to work introducing herself to the casualty, a young girl called Jenny. यानी जिसके साथ घटना हुआ था उसका नाम जेनी था, और जेन जिसके हाथ में फर्स्ट एड किट था उसे गुड स्मार्टियन कहकर संबोधित किया गया और कहा गया कि अब आप कुछ कर सकते हो। It turned out that the teen had been hit by a car and gone over the handlebars of her bike, landing on her head and shoulder. Her shoulder and arm were now twitched in an awkward position. यानी कि जब उन्होंने देखा कि बाइक का हैंडल बार्स बिल्कुल मुड़ा हुआ है, तो लगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज इसके साथ इस पोजीशन में है कि इससे पता चलता है कि एक्सीडेंट कितना हार्ड था। आई वॉज वर्डी बिकॉज शी हैड बीन बियरिंग ए हेलमेट। उन्हें लगा कि तो हेलमेट भी नहीं पहनी हुई है, इसे बहुत काफ़ी ज़्यादा चोट आई होगी।
Even so, as time passed and we continued to wait for an ambulance, और उन्हें पता था कि अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आया है, तो उन्होंने टू डिस्क्रीट हर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, उन्हें लग रहा था ऐसा कि अगर एम्बुलेंस भी अभी नहीं आया, इसे चोट भी इतना ज़्यादा आई है, तो ये कहीं शॉक्ड भी हो सकती है और इसका दर्द भी बढ़ते जा रहा था, तो कहीं ये ज़्यादा शॉक या बेहोश न हो जाए या इसका दर्द बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने उसके साथ तरह तरह की बातें करना शुरू किया। वी चैटेड अबाउट हर, उसके दोस्त के बारे में, वेदर, फुटबॉल और भी बहुत सारी बातों से बात करके उसे उसके दर्द से ध्यान को हटाना चाह रहे थे और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक उसके बाद वहाँ पर एक एम्बुलेंस आता है और उसे जीपी एंड ए डॉक्टर फ्रॉम, जो लोकल हॉस्पिटल का ही था, वहाँ उसे ले जाया गया। थिंकिंग बैक, जेन सेज, आई नेवर डिड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द गर्ल अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंड आई वाजंट थैंक्ड बाय एनीवन एल्स, बट दैट्स ओके फॉर मी नोइंग दैट इन ए स्मॉल way I helped that girl through what was a frightening experience is all the reward I need। यानी जेन को लगा कि मुझे जो रिवार्ड चाहिए था वो मुझे मिल गया, मेरे द्वारा किसी का मदद हुआ है, मेरे लिए यही काफ़ी है और आगे भी अगर मुझे किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा और मुझे किसी की थैंक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब पार्ट सेकेंड। When we are injured or suddenly unwell, what we want and need is someone who knows what to do. First aid is all about helping people in situation like this। कहता है कि हमें अगर अचानक कोई घटना घट जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ज़रूरत होती है उसका हेल्प करने, उस पोजीशन में, उस स्थिति में, और हमें knowing what action needs to be taken to control an emergency can make the difference। emergency injured at work, school or at home। इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि हमारे साथ घटना कभी भी घट सकती है और उसके लिए हमें हर लोगों को, चाहे कोई बड़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई भी, तो उसे फर्स्ट एड की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। वो घटना हमारे स्कूल में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, तो हमें फर्स्ट एड के नॉलेज रहने पर हम उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज लास्ट। नाउ हियर इज सम क्वेश्चंस, you can take next video। Thanks।